Good morning, all. Today I will be discussing with you stillbirth and abortion. The topic is stillbirth and abortion. But abortion वाली क्लास जो आपकी होगी ना, वो कल होगी पूरी डिटेल में, ठीक है ना? So I will be discussing stillbirth. So what is stillbirth? Stillbirth is the birth of a fetus after 22 weeks of gestation. Because initially it was 20 weeks. Now the criteria for the MTP, it has extended up to 22 weeks, and in special cases 24 weeks. But the limit has now increased from the 20 to 22 weeks. Up to the term, but the baby when delivered, it does not show any signs of the life. That is stillbirth. It may be during pregnancy or during labor. When it occurs during pregnancy, it is called intrauterine fetal death. And when it occurs during delivery, suppose fetal heart is okay till the patient goes in labor, and when the patient delivers, the baby show no signs of the life. That is fresh stillbirth. And the IUFD, when it delivers, the baby is macerated. Patient delivers a macerated fetus. So what we will discuss: definition, what is the pathology, what are the causes, risk factors, diagnosis, how to diagnose, and how to manage a fetal death. So the stillbirth, or the, you can say it's a intrauterine fetal death. It is almost same. So early stillbirth from 22 to 27 weeks. So pregnancy is of 40 weeks. So early 22 to 27. Then late 28 to 36 weeks. And after 37 weeks, because after 37 weeks baby is said to be mature. So it is term stillbirth. After 37 weeks, the baby dies. But what is abortion? So abortion is the expulsion of the fetus from the uterus before it reaches the stage of the viability. Abortion, when it dies before the period of viability. So it is before 22 weeks, or the fetal weight is less than 500 gram. Okay. So less than 500 gram, less than 22 weeks, it is abortion. After that, it will be included in the stillbirth range. So abortion may occur spontaneously, in which case it is a miscarriage, or it may be brought out purposefully, in which case it is often called an induced abortion. So what is the pathology? When the fetus dies in the uterus, what happens? There is aseptic degeneration of the dead fetus, because there are membranes around the fetus, amnion and the chorion. So the fetus remains inside and in a closed space. So there is aseptic degeneration of the dead fetus. That is called maceration. The epidermis is the first structure which is degenerated. You can see in this picture there is blistering and the peeling of the skin. If you touch the skin of the fetus, it will peel off. So this is the first sign within 12 to 24 hours. And the fetus becomes swollen and the dusky red look. Aseptic autolysis of the ligamentous structure and the liquefaction of the brain matter and the other viscera. After the skin, the internal organs are degenerated. So the ligamentous structure in the brain, in the limbs, they become degenerated. So the baby becomes limp, flaccid. So what are the causes for the intrauterine fetal death? There may be maternal causes, there may be fetal causes, there may be placental causes, some iatrogenic cause, or in 25 to 30% there is no cause. No cause is found. So in maternal 5 to 10%, fetal 25 to 40%, placental 20 to 35%. So what are the maternal causes? If the mother is having any medical disorder that is not controlled,
like hypertension, diabetes. If the mother is having fever, high grade fever, not in the normal fever, but a high grade fever, then there may be some infection. Intraoperatic cholestasis of the pregnancy. What is it? During pregnancy, there are hormones estrogen and the progesterone. So what? Because of the estrogen, the bile flow in the bile canaliculi become slow, and there is stasis. So it is not a obstructive jaundice, but there is mild jaundice, and the liver enzymes are increased in this. Then thyroid dysfunction may affect the fetal growth and the fetal tissue. Severe anemia, because in severe anemia there is hypoxia severe, so the baby may die. Other causes, antiphospholipid antibody syndrome. What happens in this? There are antibody formed against the own tissue, and there is connection between the mother and fetus by the cord. And the decidua, what decidua is? Decidua is the endometrium of the uterine lining that changes its character, and it becomes endometrium to decidua. So there are vascular connection between the mother and the fetus. So in these vessels there is thrombosis, intravillous thrombosis, vascular atherosclerosis. They are become constricted. So the blood supply from the mother to the fetus is hampered, and the baby may die. Thrombophilia, there are the mechanisms the same: factor V Leiden, protein C, protein S deficiency, hyperhomocystinemia. These are thrombophilia causes. Post-term pregnancy, because in post-term pregnancy after 40 weeks the placenta become mature, it becomes calcified, so there is decreased oxygen supply to the fetus. Systemic lupus erythematosus, abnormal labor means patient is in the labor, there is prolonged labor or the obstructed labor, so the fetus die. In these cases usually there is fresh stillbirth. Uterine rupture, है ना, obstructed labor है, rupture हो गया, पता ही नहीं चला, तो baby dead. Fetal causes में या तो baby में कोई congenital malformations हो, या कोई chromosomal abnormality हो, है ना, या RH incompatibility. RH incompatibility में what happens? The mother is RH negative, the father is positive. So when the fetus is formed, it may be negative or the positive, but when the baby is positive inside the negative mother, so the antibodies are formed. The antigen crosses the placenta and reaches to the mother, and the mother there are antibody formation, and these antibody again crosses to the fetus and causes hemolysis. So depend upon the degree of the hemolysis, the baby may be hydropic, the heart failure may be there, and the baby may die. Non-immune hydrops, in this one is immune hydrops, that is because of the RH immunization, because of the antibody, RH antibody. One is non-immune hydrops. In this there are no patient is RH positive, but there may be heart disease or the lung disease, some infections, severe fetal anemia, then they cause non-immune, but the antibodies are not formed in this non-immune. Then there may be severe growth restriction. It may be because of any cause, because of the some internal cause to the fetus, or the maternal cause when there are chronic hypoxemia, the hypertensive, diabetes. So they cause the growth retardation, and the growth retarded baby may not survive if there is a severe growth restriction, and the patient goes in labor, then it cannot sustain the labor pains and the baby dies. Placental causes, there may be one is positional, when the placenta is antepartum hemorrhage, that is called antepartum hemorrhage. When the placenta is implanted into the lower uterine segment, it is placenta previa. Normally it is at the fundus or the anterior or the posterior wall, but in this the placenta attaches to the lower part of the uterus, lower segment. Or abruptio. Abruptio placenta means placenta is normally situated, but it separates from the wall, so it can cause hypoxemia. Cord accident, the cord may be prolapsed, or there may be cord round neck. So when the baby moves, it may become tight and the baby may die. Or sometimes there is true cord knot. In the cord there may be false knots and the true knots. False knots, when the
placenta is coiled, vessels are coiled, so it looks like a knot, but it is false knot. But in true knot, it is literally true knot. So during movement, it may the blood supply is hampered because of the knot in the cord, so baby may die. Then there may be twin to twin transfusion. When there are twins and there are monochorionic, monoamniotic, so there are vascular connection between the two fetuses. So one fetus grows and the second become growth restricted, and the material the whole goes to the healthy fetus and the other become maybe intrauterine fetal death, and placenta insufficiency because of the any cause, maternal cause. Then iatrogenic cause means आपने कुछ कर दिया है ना, iatrogenic अपना इंड्यूस. सपोज कई बार क्या होता है कि जब ब्रीच है या ट्रांसफर स्लाई है, हालांकि आजकल तो नहीं करते, तो ट्रांसफर स्लाई डिलीवर नहीं होगा है ना, ब्रीच में भी प्राइमरी, स्पेशली प्राइमरी ब्रीच है तो सिजेरियन होता है. तो कई बार क्या होता है कि एंटीनेटल पीरियड में वी ट्राई टू रोटेट द फीटस है ना, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन. जैसे ट्रांसवर्स में है तो उसको अपोजिट रोटेट करके हेड को नीचे लाएंगे, या अगर ब्रीच है तो उसको 2 टर्न लेके आपको हेड नीचे लाना है, तो ये ट्राई करते हैं. बट मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स में आजकल कोई नहीं करता. आपने ब्रीच आया, सिजेरियन कर दिया, तो वो एक प्रोसीजर है जिसमें कि अगर आपने रोटेट किया बेबी को और अगर उसके लूप है या कॉर्ड शॉर्ट है तो वो या तो डिटैच हो जाएगा वहां से या फिर एस्फिक्सिया हो जाएगा, तो बेबी को डाई. या फिर कई बार कोई ड्रग अपन जैसे मलेरिया वगैरह है, तो अगर कोई ड्रग ओवरडोज हो गई तो भी बेबी को हार्म कर सकती है. तो एंड इडियोपैथिक मीन्स देयर आर नो कॉज, कोई कॉज ही नहीं मिला है ना. सो फ्रेश स्टिल बर्थ जो मैंने बताया, फ्रेश स्टिल बर्थ वो होता है जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी डाई हो जाता है. अभी तक तो ठीक है, आपने लेबर इंड्यूस किया या पेशेंट लेबर में आई, फीटल आर्ट ठीक है, लेकिन जब डिलीवर हुई तो बेबी स्टिल बर्थ है ना. सो व्हाट आर द कॉजेस है ना. तो उसमें कोई पुराने कॉज भी हो सकते हैं है ना, जो मदर को चल रहे हों, उसकी वजह से बेबी कंप्रोमाइज हो, जैसे ग्रोथ रिटार्डेड है, अब वो लेबर में गया तो वो डाई हो गया, या कॉर्ड की वजह से कोई हो सकता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी लेबर के टाइम है ना. तो बर्थ एस्फिक्सिया एंड द ट्रॉमा. प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताया आपको, अगर डायबिटिक कंट्रोल नहीं है, अगर कंट्रोल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कंट्रोल नहीं है, किसी की कंट्रोल नहीं आती, डाइट से नहीं कंट्रोल आ रही या इंसुलिन टाइम पे नहीं ले रही है, वट एवर द कॉज, या फीटल कंजेनिटल मालफॉर्मेशन एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी. कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि आपको सीधे 9 मंथ्स पे दिखाएंगे है ना. अब उसमें आपको ये तो नहीं पता ना कि बेबी में क्या कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, लेबर में आई, अब तो डिलीवर होगा जो होगा. लेकिन अगर आपको के पास शुरू से पेशेंट आ रही है, मतलब प्रॉपर एंटीनेटल केयर में आ रही है, तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हो. आप लेवल 2 मीन्स जो आपका एनोमली स्कैन है, वो सारे जो भी है प्रॉपर कंट्रोल रहता है. तो लेकिन अगर पेशेंट कई बार नहीं होती है तो फिर अगर बेबी में डिफेक्ट है तो बाद में बेबी डाई हो जाता है ना. कॉर्ड राउंड नेक, कॉर्ड प्लस मिकोनियम एस्पिरेशन. मिकोनियम एस्पिरेशन क्या होता है, इट इज व्हेन द बेबी इज डिस्ट्रेस है ना इनसाइड, सो द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन अकर एंड द बेबी passes मोशन. So this meconium is the baby's motion है ना. when the membrane ruptures or the liquor comes, if it is greenish color, it is greenish yellow color. So when you see this is meconium, then there is some distress to the fetus and we have to take immediate action, otherwise the baby will die. Obstructed labor and the unknown cause. प्रॉपर असेसमेंट नहीं है आपका, बेबी बिग है या पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, आपने लेबर में जाने दिया उसका, तो ऑब्स्ट्रक्टेड जाएगी और वो बेबी डाई. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, किन में ज्यादा चांसेस रहते हैं ये है ना. तो एडवांस मैटरनल एज है ना, वो भी एक रिस्क फैक्टर. स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई ड्रग अब्यूज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो IVF वगैरह करते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा सा रिस्क रहता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, ओबेसिटी, ओबेस पेशेंट है तो उसमें ज्यादा रिस्क है, माल नरिश्ड है, प्रीवियस हिस्ट्री अगर उसको IUGR है या स्टिल बर्थ है या अबॉर्शन है, तो उसमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क होती है कि ये अबॉर्शन या IUD हो सकता है ना. फिर रीनल डिजीज या थायराइड डिजीज, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है अगर किसी को है तो. अब आप डायग्नोस कैसे करोगे है ना, IUD है तो एक तो जब पेशेंट आती है आपके पास है ना, तो आपके पास LMP से आप क्या करते हो, जेस्टेशनल एज निकालोगे, सपोज 34 वीक से है ना, सपोज 8 मंथ चल रहा है, आपने 34 वीक्स कैलकुलेट,
आपने जो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया तो आपको लगा ये तो 28 वीक्स ही आ रहा है, 30 वीक्स आ रहा है, तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगी कि एक तो मेरे को बच्चा पहले घूम रहा था जो अब नहीं घूम रहा है ना। कई बार कहती है कि मेरा बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है, जैसे होता है ना, सब कहते हैं ना अच्छा तुम्हारे इतनी प्रेगनेंसी, तुम्हारे तो दिखता ही नहीं है। तो वो पेशेंट को लगता है कि ना मेरा एब्डोमेन ही नहीं बढ़ रहा, इतना छोटा सा लग रहा है, या जितना मतलब उसके हिसाब से उसको है जेस्टेशनल एज, या फिर पहले बच्चा घूमता था अब नहीं घूम रहा है ना। तो पेशेंट की कंप्लेन ये रहती है। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि, या पेशेंट कहेगी कि मेरे को जो भी सिम्टम्स थे पहले प्रेगनेंसी के, वॉमिटिंग या कुछ भी जो भी होता था वो अब नहीं हो रहा। ठीक है ना, जो ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के वो भी रिवर्ट होने लग जाते हैं, और सिम्टम्स भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो आपको नहीं होंगे। अब पर एब्डोमिनल पे आपको कम होगा, लेकिन आप एक बार देख के नहीं कह सकते कि अगर एक बार सपोज पेशेंट आई कि बच्चा नहीं घूम रहा है, तो एक बार आपने देखा कि कम लग रहा है, तो आप उसमें नहीं कह सकते। या तो फिर आप स्ट्रेस से सुनोगे उसको, या आप डॉपलर से सुनोगे फीटल हार्ट, है ना। तो एक तो फीटल मूवमेंट नहीं होंगे। कई बार हम व्हेन वी पुट आवर हैंड ओवर द एब्डोमेन, द बेबी मूव एंड वी कैन फील इट। सो पेशेंट डजंट फील, यू कैन नॉट फील। फीटल हार्ट नहीं आ रही है आपको, फीटल हार्ट सुनी आपने नहीं है ना। और कई बार ऐसा होता है कि जो हेड होता है ना, आपको हेड जब फील करते हो तो नॉर्मली क्या होता है, बिग हेड है ना, 9.8 सेंटीमीटर वाला बीपीडी, आपको एक राउंड वो फील होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको लगता है ऐसा कि है ना पे चक रहा है बेसिकली, है ना, ये क्रैम्पलिंग वो हो रही है ना बोन्स, क्योंकि बोन्स जो होती है ब्रेन मैटर में भी सारा लिक्विफिकेशन हो गया, तो जो बोन्स जो होती है ड्यूरा मैटर वगैरह वो सारी लिक्विफाइड हो जाती है, तो ब्रेन की जो बोन्स होती है वो कोलैप्स हो जाती है, तो यू कैन फील दैट, है ना। लेकिन ये लेट होता है, ऐसे नहीं कि बेबी अभी डेथ हुई है और ये एक्चुअल ये आ जाएगा, ये आता है 7 डेज के बाद में। तो कैसे डायग्नोस करोगे, सोनोग्राफी, है ना। तो सोनोग्राफी से आप कंफर्म कर सकते हो, आपको लग रहा है कि फीटल हार्ट आपको नहीं आ रही है ना स्टेज पे, तो आप ये नहीं बोलोगे पेशेंट को कि है ना तुम्हारा बच्चा खराब हो गया, लेकिन आप बोल सकते हो कि धड़कन नहीं सुन रही है, हम सोनोग्राफी कराएंगे। तो सोनोग्राफी इज डेफिनेटली डायग्नोसिस। उसमें आपको एक तो क्या फीटल हार्ट नहीं सुनेगी, है ना, फीटल मूवमेंट नहीं फील होंगे, ठीक है, और उसमें लाइकर भी कम हो जाएगा, और कोलैप्स बोन्स भी अगर है, अगर कितने दिन है ना, मतलब अगर 7 डेज से ज्यादा हो गया तो सोनोग्राफी में भी दिख जाएगा आपको, क्रैकलिंग जो होता है, ओवरलैपिंग ऑफ द बोन्स, है ना। सो ऑस्कल्टेशन है, कार्डियोटोकोग्राफी, कई बार हम सीटीजी मशीन देखी होगी आपने कभी लेबर रूम में, है ना, तो उससे देखते हैं, लेकिन उससे भी नहीं आ रही है, फिर भी हम पेशेंट को कंफर्म नहीं करते जब तक कि हम सोनोग्राफी नहीं करा देते, है ना। अपन पेशेंट को बोल सकते हैं कि धड़कन नहीं आ रही है ना, क्योंकि सडनली आपने कुछ भी नहीं बोला पेशेंट को और सोनोग्राफी में फीटल हार्ट नहीं आई, तो पेशेंट तो यही बोलेगा ना मेरा तो बच्चा घूम रहा था, आपने क्या कर दिया, है ना। तो वी कैन काउंसिल द पेशेंट कि आपकी धड़कन नहीं आ रही है एंड वी विल कंफर्म बाय द सोनोग्राफी, है ना। कई बार क्या होता है कि बेबी डाइड होता है, आपने देखा कि फीटल हार्ट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे को मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो आपको उसमें अगर पेशेंट कहती नहीं मेरा तो बच्चा घूम रहा है ना, आपने उसको बोल दिया कि भाई नहीं आ रही फीटल हार्ट, वो तो कहती नहीं मेरा बच्चा घूम रहा है, तो यू कैन गो फॉर अगेन सोनोग्राफी फॉर कंफर्मेशन ऑफ द पेशेंट, है ना। क्योंकि अगर किसी का बच्चा एक्सपायर है तो पेशेंट मदर एकदम से नहीं करती, है ना, कि भाई नहीं नहीं मेरा तो बच्चा घूम रहा है, मेरा तो ठीक था, ऐसे, है ना, एक्सेप्ट नहीं करती कि भाई बच्चा डाइड है। एक्सरे एब्डोमन ये ऑब्सोलीट है अब आजकल, क्योंकि सोनोग्राफी हर जगह है ना, तो सोनोग्राफी से हम कंफर्म करेंगे। लेकिन पहले के टाइम में जब हर जगह सोनोग्राफी नहीं होती थी तो कुछ ऐसे साइन थे जो एक्सरे में आपको उससे पता लगता था कि क्या है। तो सबसे पहले तो रॉबर्ट साइन, दैट इज गैस शेडो इन द हार्ट चैम्बर्स एंड ग्रेट वेसल्स, ये 12 आवर्स के अंदर अंदर अपीयर हो जाती है। लेकिन अगर आपने एक्सरे में देखा अगर गैस ज्यादा है तो आपको कई बार नहीं पता लगता है, बट अगर आप ये जैसे हार्ट वगैरह में आपको गैस दिख गई तो ये वो है स्पाल्डिंग साइन, दैट इज कोलैप्स ऑफ द फीटल स्कल, है ना। ये आपको इसमें दिख रहा है, इसका मार्कर कहाँ है, ये आपको ये दिख रहा है ना ओवरलैपिंग बोन्स, है ना, मुझे पता इसमें मार्कर कहाँ से आएगा, ये दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ये ओवरलैपिंग हो गई ना बोन्स की, है ना, ये नीचे हो गई। नॉर्मली तो क्या ऐसे होता, बस ये कहीं से भी हो सकती है, तो दिस इज स्पाल्डिंग साइन। वन इज बॉल साइन। बॉल साइन क्या, जब हम एक्सरे कराते हैं
तो आपको कैसे पिक्चर आती है कि जो स्पाइंस जो होती है ना एकदम हाइपरफ्लेक्स, बेबी एकदम गोल गोल हो जाता है ना, हाइपरफ्लेक्शन एंड द क्राउडिंग ऑफ द रिब्स, क्योंकि नॉर्मली अगर ऐसे है ना, तो रिब्स का क्या होगा, लेकिन अगर बेबी ऐसे गोल हो जाएगा तो क्राउडिंग ऑफ द रिब्स हो जाएगी। तो ये दिस इज बॉल साइन, है ना। बट आजकल एक्सरे यूजुअली नहीं कराते इसके लिए। तो व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन। अब आईयूडी आपने डायग्नोस कर लिया, तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे, है ना। एक तो होता है कि कॉज देखना है कि भाई क्या कॉज हुआ, किसकी वजह से हुआ, और भाई मदर ठीक है कि नहीं, है ना, मदर को भी देखना है ना आपको, मदर भी ठीक है कि नहीं। तो एक तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो कि हम किसी भी एंटीनेटल पेशेंट में कराते हैं, जैसे सीबीसी है, यूरिन एग्जामिनेशन है, ब्लड शुगर है, थायराइड है, ब्लड ग्रुप है ना, वायरल मार्कर से, ये तो अपन कोई भी पेशेंट रूटीन होती है उसमें कराते हैं, है ना। तो ABRH ग्रुप में अगर नेगेटिव पेशेंट है ना, RH नेगेटिव है, तो बेबी में भी नेगेटिव और द पॉजिटिव, आपको नहीं पता ना फीटस कैसा है ना। तो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है जो कि मदर में कितनी एंटीबॉडी हैं उसको डिटेक्ट करता है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। तो अगर वो एंटीबॉडी अगर वो अफेक्टेड नहीं है तो नेगेटिव रहेगी, लेकिन अगर बच्चा अफेक्टेड है तो ये मदर में एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगी। तो फिर आगे उसका मैनेजमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसमें भी बच्चे को रिस्क रहती है, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें एंटीबॉडीज जो दे एंटर्स इनटू द फीटल सर्कुलेशन एंड कॉजेज हिमोलिसिस देयर। सो व्हेन देयर इज सीवियर हिमोलिसिस देयर में फीटल एनीमिया, देयर में बी हार्ट फेलियर, सो बेबी में डाई। ओरल जीटीटी डायबिटीज का है अगर पेशेंट, तो आप जीटीटी कराओगे, HbA1c कराओगे, पुराना लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, है ना, कोई क्रोनिक रीनल डिजीज है, कोई लिवर डिजीज है, और सिफिलिस VDRL, है ना। तो ये आप टेस्ट कराओगे। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे ये थायराइड और यूरिन तो आपने रूटीन में कराया। टॉर्च प्रोफाइल करा सकते हो अगर उसके अबॉर्शन है या IUD है, क्योंकि कई बार रूबेला, ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, साइटोमेगाला, ये बच्चे में क्या कंजेनाइटल डिफेक्ट कर सकते हैं, है ना, तो बेबी में डाई। और कोगुलेशन प्रोफाइल है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर रिटेन रहता है ना फीटस, पेशेंट को पता ही नहीं है ना, उसको तो लगता है कि मेरे को बच्चा घूम रहा है और हो जाते हैं, तो फिर उसमें कोगुलेशन डिसऑर्डर के चांसेस रहते हैं। तो यू कैन गो फॉर PTINR, एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, फिब्रिनोजन, FDP, ये सारे D-डाइमर वगैरह, ये सारे कोगुलेशन के टेस्ट हैं, है ना, जो आप कराओगे। फिर ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, जो एप्ला सिंड्रोम जो मैंने बताया था ना, जिसमें एथेरोसिस और वो हो जाता सारा, है ना, तो उसमें एंटीकोगुलेंट, एंटीकार्डियोलिपिन, एंटीबॉडी, तो बॉडी के अपने टिश्यू के प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन जो होती है उनमें एंटीबॉडी बन जाती है। थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीन करा सकते हैं, और अगर फिटस है कोई, अगर अटेंडेंट चाहे तो हम भाई कॉज नहीं मिल रहा क्या है, तो फिर आप कैरियोटाइपिंग करा सकते हो बेबी की, है ना। उसके लिए आपको लाइव सेल्स नहीं चाहिए होती हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर पेशेंट के बेबी डाई है तो क्या उसको, पेशेंट को थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है ना, बच्चा खत्म हो गया उसका, तो एंजाइटी हो सकती है। इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होता, क्योंकि बिकॉज द मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, सो इट इज ए क्लोज स्पेस, तो कहाँ से इन्फेक्शन जाएगा। बट अगर ये प्रोलोंग है या मेम्ब्रेन रप्चर हो गई या नीचे वजाइनल इन्फेक्शन, तो इट मे बी ऐसे, तो देन देयर मे बी प्रॉब्लम इन्फेक्शन। एंड ये जो डेड फिटस है ना, इफ इट इज रिटेन फॉर मोर देन 4 वीक्स, अगर 4 वीक्स तक ये डेड फिटस पड़ा हुआ है, देन देयर आर चांसेस ऑफ कोगुलेशन डिसऑर्डर, DIC में जा सकती है पेशेंट, है ना। उसमें क्या होता है कि डेड फिटस पड़ा हुआ है अंदर, so there is gradual absorption of the thromboplastin liberated from the dead placenta and the decidua। अब डेड है ना सारा अंदर, कुछ वेस्कुलरिटी तो है नहीं, तो उससे क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है जो कि मैटरनल सर्कुलेशन में जाता है, तो इट कैन एग्रीवेट द कोगुलेशन कैस्केड, है ना। और ड्यूरिंग लेबर क्या हो सकता है, अब डेड है, टोन नहीं है, यूटरस भी बिल्कुल फ्लैसिड पड़ा हुआ है, तो इनर्शिया हो सकता है, रिटेन प्लेसेंटा एंड द PPH। आपको सोना है तो बाहर जाके सो जाओ, जाओ 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 जाओ, बाहर जाके सोना, उठ जाओ, मेरे को क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, उठ जाओ उठ जाओ, जाओ। अगर इतनी बोर लग रही है ना क्लास, वहां फिर एग्जाम में होते हैं ना, सब सबके फोन करवाते रहते हैं, है ना, वहां कुछ बोलोगे नहीं और फोन करवाते रहोगे, वहां एक अक्षर बोलने को नहीं आएगा। अगर इसका 20% भी आपको याद रह जाएगा तो फायदा ही है ना,
कुछ नाम तो सुना हुआ होगा ना, वहाँ एग्जाम में ऐसे बैठ जाते, देखते रहते इधर उधर, जब पूछो तो कम से कम कुछ चीज सुनी भी होगी ना। बाकी तो बुक में से पढ़ोगे, मैं नहीं कह रही कि सारा तुमको याद होगा, कुछ समझ में आ जाए। मैनेजमेंट, हाउ विल यू मैनेजमेंट? मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन कितनी जेस्टेशनल एज है, सिंगल है, मल्टीपल है, भाई 20 वीक्स 28 वीक्स पे डेथ है या स्टिल बर्थ है, फुल टर्म है, कोगुलेशन प्रोफाइल क्या है पेशेंट का, कोई डीआईसी में तो नहीं आपने चेक किया है। जब डेड फिटस को आप डिलीवर कराते हो तो उससे पहले आप कोगुलेशन प्रोफाइल कराते हो, क्योंकि अगर डिलीवर हुआ तो पीपीएच हो सकता है ना, तो आप ये पहले ही करा के रखोगे। पेशेंट क्या चाहता है, पेशेंट कई बार होता है कि बच्चा नहीं भी घूम रहा है ना, तो घर ही बैठी रहती है ना, तो एक तरह से एक्सपेक्टेड मैंने, क्योंकि अगर हमारे पास आई है और हमने डायग्नोस किया है आईयूडी, तो पेशेंट यूजुअली डिले नहीं करती, वो कहती नहीं नहीं मेरा बच्चा खत्म हो गया तो अब है ना, हम कहते हैं एडमिट हो जाओ, तो पेशेंट डिले नहीं करती कि मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी या मैं अपने आप से मेरे को दर्द आ जाएंगे, नहीं। रेयरली कोई पेशेंट हो, किसी की कोई घर की प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज जब आप डायग्नोसिस पेशेंट को बताओगे तो पेशेंट यूजुअली हो जाती है। पेशेंट को क्या रिस्क रहती है, वो बोलते हैं ना कि जहर तो नहीं फैल जाएगा, अटेंडेंट पूछते हैं जहर तो नहीं फैल जाएगा, तो जहर क्या होता है, क्या होता है जहर? नहीं नहीं, इन्फेक्शन नहीं, ये कोगुलेशन प्रोफाइल, ये जो होता है ना, डीआईसी में चली जाती है ना पेशेंट, तो उनको लगता है इन्फेक्शन हो सकता है, कोगुलेशन प्रोफाइल, तो उनको लगता है जहर, तो वो फटाफट एडमिट करा देते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट जैसे गांव में है, नहीं दिखा रही है, वो उसका बच्चा नहीं घूम रहा है, तो वो चले ही जा रहा है ना, एक तरह से आपने किया या पेशेंट ने एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, उसको तो पता ही नहीं, लेकिन हो रहा है ना, एक्सपेक्टेंट ही हो रहा है ना, तो यूजुअली ये 2 वीक्स में बेबी डिलीवर हो जाता है ऐसे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पेशेंट आई है तो 2 वीक तक थोड़ी पेशेंट वेट करेगी कि अपने आप हो जाएगा, है ना? तो पेशेंट एडमिट हो जाती है, तो 85% 2-3 वीक्स में हो जाती है। और बाकी तो इसलिए यूजुअली हम एक्टिव अप्रोच रखते हैं कि पेशेंट को दिक्कत ना हो, है ना। वुमेन शुड बी ऑफर्ड अ चॉइस ऑफ इमीडिएट इंडक्शन ऑफ द लेबर और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, तो आप दे सकते हो, है ना, लेकिन पेशेंट मतलब दोनों का है, आप क्या चाहते हो और पेशेंट क्या चाह रहा है ना। फिब्रिनोजन एस्टिमेशन शुड बी रिपीटेड ट्वाइस वीकली इन ए वुमेन हु चूज टू एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। पेशेंट कहती है कि नहीं नहीं मैं अभी तो नहीं, अभी तो मेरे घर में शादी है, मेरे को तो जाना है, कुछ है ना, तो फिर पेशेंट को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि तो आपको फिर ये डीआईसी के टेस्ट आपको हफ्ते में 2 बार करने हैं, है ना, बट यूजुअली ऐसा चांस नहीं होता है। अर्ली इंटर, अब जैसे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है, पेशेंट ने कहा नहीं नहीं मेरे तो अभी है ना, तो अब कब करोगे? या तो पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई है कि नहीं मेरे तो क्या है, इन्फेक्शन हो गया या मेम्ब्रेन रप्चर हो गई या बहुत 2 वीक से भी ज्यादा वो हो रहा है या फिब्रिनोजन कम हो गया, तो फिर आप अर्ली करोगे, है ना। अब इंडक्शन कैसे करोगे, है ना, अब डेथ हो गई, पेशेंट को भी बता दिया। ये पेशेंट को जो आप जब बताते हो ना कि बेबी डाइड है, तो आप ऐसे नहीं जाके ब्लंटली कि आपका बच्चा खत्म हो गया है ना, आपको बिल्कुल टैक्टफुली, क्योंकि एकदम से अटेंडेंट सारे, है ना, इतने सारे अटेंडेंट होते हैं, एकदम से आपका हो हल्ला, तो आपको टैक्टफुली आपको पेशेंट को बताना है कि बच्चा आपका ठीक नहीं है, या आप पहले से भी तो करोगे, या सडन अगर हो गया तो आप भी कुछ नहीं कर सकते ना, अगर उसका मूवमेंट के टाइम में अगर बेबी एक्सपायर हो गया तो आप भी क्या कर सकते हो, है ना। तो फिर आप क्या करते हो, तो पेशेंट हल्ला मचाते हैं ना, तो आपको वो एक न्यूज भी देनी होती है पेशेंट को। अगर सडन हो गया तो आपको भी नहीं पता क्या हुआ, है ना, कई बार रहता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई मैटरनल कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, कोई फीटल कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी सडनली आपका आपने एडमिट कर रखा है, या पेशेंट आपने कोई भी कारण के लिए कि भाई उसको ब्लड लगाना है या कुछ भी कारण के, और सडनली बेबी एक्सपायर, सो यू हैव टू एक्सप्लेन टैक्टफुली कि नाउ व्हाट विल, कि अब देखेंगे बेबी को, क्योंकि कई बार क्या होता है यूजुअली ऐसे कॉजेज में, या तो कोई आपके लेबर में दिक्कत आई है उसकी वजह से, लेकिन वो तो बात की बात है ना, तो बेबी तो डाई हो गया ना अभी जस्ट पहले, तो यूजुअली ऐसे केसेस में या तो कॉर्ड राउंड नेट, टाइट कॉर्ड अराउंड द नेक होती है जो मूवमेंट्स के टाइम, या कोई नॉट हो सकती है, या एकदम प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई, तो ऐसे केस में तो वो एक वो है। लेकिन जब आपने सब कुछ बता दिया तो अब क्या करोगे, अब डिलीवर तो कराना है ना पेशेंट को, तो या तो हम कई सारे मेथड हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के, मिफिप्रिस्टोन होती है जो कि एंटी प्रोजेस्टेरोन होती है, बट यूजुअली जब बेबी डाइड है तो उसमें एंटी प्रोजेस्टेरोन की जरूरत यूजुअली नहीं होती है, तो या फिर मीजोप्रेस्टोल जो होती है, जो PGE1 टैबलेट होती है ना, ये जो टैबलेट होती है फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, तो इसका ये रहता है कि ये जो टैबलेट होती है ना, कि जैसे जैसे अर्ली प्रेगनेंसी से पूरा टर्म तक, क्योंकि इनिशियली क्या है जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं ना वो मैक्सिमम होते हैं लेबर के टाइम, सेकेंड स्टेज में बहुत, तो अगर आप बहुत ज्यादा अगर उसको आप ये दे दोगे तो
यूट्राइन रप्चर हो सकता है, हाइपरटोनिक हो सकता है ना। तो जैसे जैसे लेबर की तरफ जाते हैं तो इसकी डोज कम होती जाती है ना। जैसे आपका अबॉर्शन वाला है सपोज, है ना, 12 वीक्स का है, आपको अबॉर्शन करना है, तो उसमें आप 800 तक की डोज भी दे सकते हो, 800 माइक्रोग्राम। लेकिन लेबर के इंडक्शन के लिए इट इज ओनली 25, है ना। तो वो इस वजह से तो वेजाइनली रख सकते हो आप, ओरली रख सकते हो। ये जो टैबलेट होती है ये आप रेक्टली रख सकते हो, वेजाइनली रख सकते हो, ओरली। रेक्टली आप उन केसेस में जहाँ पीपीएच हो रहा है, नॉर्मली तो उसके लिए नहीं रखते। PGE2 जेल है जो आपका सर्विटाइम जेल है, PGE2 जेल है। तो ये हम कहाँ पे, इसमें एक नॉब होती है ना, एक ट्यूब होती है, उसमें दवाई भरी हुई होती है, नॉब होती है, तो हम सर्वाइकल कैनाल में डालते हैं इसको। एक्सटर्नल ऑस है, इंटरनल ऑस है, बीच में कैनाल है, तो आपको कैनाल में डालनी है। अगर अंदर डाल दिया तो आपका वो प्रोस्टाग्लैंडिन अंदर चले जाएंगे तो हाइपरटोनस हो सकता है, तो कैनाल में डालना होता है। उससे क्या होता है, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड द डायलेटेशन होता है। या कभी कभी फोलिस कैथेटर जो होता है ना, तो उसको यूट्रस में डाल के और बल्ब इन्फ्लेट कर देते हैं, उसको क्या ट्रैक्शन लगा के रखते हैं। तो ट्रैक्शन जब लगा के होते हैं ना, क्या होता है जब लेबर आती है ना पेशेंट, तो हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं उसको। कई बार पेशेंट को जैसे टाइम होता है, 1-2 दिन पहले आती है पेन थेन थोड़ा करके, तो हम क्या करते हैं, पीवी करते हैं। तो पीवी से हम क्या करते हैं, फिंगर घुमा देते हैं, तो उससे स्वीपिंग हो जाती है। तो उससे क्या है, जो मेम्ब्रेन्स होती है दैट बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विक्स, और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं। तो ये भी एक तरह से, तो बल्ब जो होता है ना उसका, तो हम उसको ट्रैक्शन लगा के टाइट कर देते हैं। तो उससे क्या ग्रेजुअली ग्रेजुअली जैसे उस पर प्रेशर पड़ेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, कॉन्ट्रेक्शन आएगा, थोड़ा और डायलेट होगा तो थोड़ा सा और। तो ये भी एक मेथड होता है। लेकिन फोलिज उन केसेस में या तो बिल्कुल टाइटली क्लोज है और या प्रीवियस सिजेरियन है ना। तो कैसे देते हैं आप, इसमें मीजोप्रोस्टोल भी दे सकते हो, ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हो। तो ऑक्सीटोसिन जब देते हैं, जब या तो हम सप्लीमेंट करने के लिए देते हैं कि जो कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं मीजोप्रोस्टोल से उसको एक्सेलरेट करने के लिए, या फिर अगर सर्विस फेवरेबल है, सपोज पेशेंट अर्ली लेबर में ही आ गई आपके पास, है ना, आईयूडी है लेकिन लेबर में आई है, 1 फिंगर 2 फिंगर डायलेटेड है अगर थोड़ा बहुत, तो यू कैन गो फॉर डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन, है ना। तो वही है इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि अगर लोअर जेस्टेशनल एज है तो आप कम डोज दोगे, और अगर ज़्यादा है तो कम डोज दोगे, है ना। तो यू कैन रिपीट इट 4 आवरली 6 आवरली रिपीट कर सकते, एंड यू कैन सी द रेस्पॉन्स ऑफ द सर्विक्स, इट इज डायलेटिंग और नॉट, द पेशेंट डिलीवर्स और नॉट। तो अगर फेवरेबल है तो आप मीजो की जगह डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन लगा सकते हो। तो ऑक्सीटोन इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो लेबर के लिए करते हैं ना हम, वो 1 यूनिट 2.5 यूनिट 3 यूनिट इतना लगाते हैं, लेकिन इसमें हम इवन अप टू 5 to 10, क्योंकि उसमें क्या रिस्क रहता है, एक तो फीटल रिस्क रहता है ऑक्सीटोसिन ज़्यादा लगाने से, कि बच्चे को एस्फिक्सिया हो कि बच्चा डाई हो सकता है, या फिर मदर को हाइपरटोनस हो सकता है। तो अभी बेबी का तो अब है नहीं ना, बेबी तो डाइड है, तो वी कैन गो फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन, 10 यूनिट 5 यूनिट, है ना, इंक्रीजिंग द डोज। तो यूजुअली जब इंड्यूस करते हो तो 24 आवर्स में यूजुअली पेशेंट सारे डिलीवर हो जाते हैं। अब इवोल्यूशन कैसे करा, अब आपका बच्चा निकल गया, है ना, तो आप क्या करोगे, कोई सबसे पहले तो देखोगे कि कोई कॉर्ड राउंड नेक तो नहीं है, बच्चे में कोई कंजेनेटल डिफेक्ट तो नहीं दिख रहा है ना। और सोनोग्राफी करा सकते हो बच्चे की, कि भाई अंदर कोई प्रॉब्लम है उसके, एमआरआई करा सकते हो, क्रोमोजोमल स्टडी करा सकते हो उसकी, या ऑटोप्सी अगर किसी को होता है कि नहीं नहीं, कई बार होता है ना बच्चा किसी भी वजह से डाय, लेकिन वो कहते हैं नहीं डॉक्टर ने मार दिया, डॉक्टर ने कर दिया, है ना, तो आप पोस्टमार्टम करा सकते हो बच्चे का, है ना। तो ये सारे वो है। रूटीन एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग इंट्रापार्टम पीरियड, क्योंकि अभी मेम्ब्रेन तो इंटैक्ट है ना, इन्फेक्शन तो है नहीं, तो आप प्रोफाइलेक्टिक रूटीन जो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस हम देते लेबर में, वो इसमें नहीं देना है। लेकिन अगर इन्फेक्शन का आपको लग रहा है तो आप एंटीबायोटिक दोगे, है ना, और डीआईसी के लिए भी चेक करोगे। अब सपोज प्रीवियस सिजेरियन है और बच्चा डाइड है, तो आप कैसे अब करोगे, क्योंकि प्रीवियस सिजेरियन में अगर आपने मीजोब्रोस्ट रख दी ना, तो देर आर चांसेस कि यूट्रस रप्चर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, आपने मीजो रख दी या जेल डाल दी, है ना। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए अगर आपने डाला है, अदरवाइज जो स्कार्ड यूट्रस है ना, यूजुअली उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देनी चाहिए। इट इज ए नॉट ए एब्सोल्यूट, बट यू हैव टू सी फॉर द यूट्राइन रप्चर। तो बेबी तो डेड है ही है, तो उस केसेस में हम फोलिस कैथेटर डाल सकते हैं, है ना, जिससे एकदम से कॉन्ट्रेक्शन आए, क्योंकि मीजो से एकदम प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, हाइपरटोनस होगा, तो स्कार्ड यूट्रस है,
है ना, तो इट कैन रप्चर। ठीक है। और अगर आप डिलीवरी के लिए कर रहे हो, उसमें मान लो थोड़ा सा लेबर में आई है पेशेंट, प्रीवियस सीजरियन है लेकिन लेबर में आई है, तो आपको वी बैक क्या होता है, पता है किसी को वी बैक क्या होता है? वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। ठीक है ना, एक सिजेरियन है, अब आप डिलीवर हो रही है या डिलीवर करवा रहे हो, तो इट इज वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, वी बैक, है ना। तो अगर दे रहे हो तो आपको देखना है कि इसका रप्चर ना हो, ऑक्सीटोसिन लगानी है, फोलिस से करना है, मीजोप्रोस्ट नहीं देनी है स्टार्ड यूट्रस में। ठीक है। अब सिजेरियन किस में करोगे? अब बेबी डाइड है ना, तो नॉर्मली डिलीवर कराना है ना आपको, लेकिन सिजेरियन करना है, किस केस में करना है? नॉर्मली तो सिजेरियन नहीं करते ना, आईयूडी में क्यों करोगे सिजेरियन, है ना। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है ना, तो आपको करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो यूट्रस रप्चर हो जाएगा, है ना। ट्रांसफर्स लाई है, वो डिलीवर नहीं होगा। मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब प्लेसेंटा बिल्कुल ऑस पे पड़ा हुआ है ना, जो कवरिंग ऑस, तो मेजर डिग्री होता है ना। प्लेसेंटा की ग्रेडिंग क्या होती है? अगर लो लाइन है, फिर ऑस तक आ रहा है, या हाफ में वो कर रहा है, या फुली डायलेटेड में भी प्लेसेंटा है, तो मेजर डिग्री, तो उसमें बच्चा कैसे आएगा, है ना। या प्रीवियस 2 सिजेरियन है, प्रीवियस 1 में फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं कि नॉर्मल कराएं, बट प्रीवियस 2 है तो आपको सिजेरियन ही करना है, चाहे आईयूडी है ना। या फिर आपको लग रहा है कि रप्चर हो सकता है ये, तो फिर आप उसमें सिजेरियन ही करोगे। अब डिलीवर हो गया है ना, तो क्या करोगे? इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि पेशेंट आपने अगर जनरल वार्ड में उसको लिटा दिया, सारे तो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, है ना, कोई बच्चा चिल्ला रहा है किसी का, अब उस मदर को क्या है कि उसको, तो आपको ऐसे पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत देना है। आप उस कोने के बेड में रख सकते हो, अलग वार्ड में रख सकते हो, ताकि उसको, क्योंकि जब और के बच्चों को देखेगी तो उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकती है पेशेंट, तो इमोशनल सपोर्ट है ना, वहां नहीं रखना है। कॉन्ट्रासेप्शन काउंसलिंग कर सकते हो, अगर मान लो 2-3 बच्चे हैं पहले उसके, लेकिन इस बार भी हुआ और वो डाइड हो गया, तो भी हम कहते हैं कि चल अब 2-3 बच्चे तो है तुम्हारे, तो कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हो। अब क्या है कि मिल्क सप्रेशन करना है आपको, है ना, बेबी तो डेड, बेबी तो दूध पिएगा नहीं, तो मिल्क सप्रेशन के लिए क्या दे सकते हो आप? डोपामिन एगोनिस्ट दे सकते हो, है ना, लेकिन ये हाइपरटेंशन या प्रीएक्लेम्सिया वाले पेशेंट में नहीं देते हो, है ना। और जो ईस्ट्रोजन भी नहीं देना है, क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या करता है? कोगुलेशन फैक्टर को वो करता है ज्यादा, तो वैसे ही पेशेंट एट रिस्क पे है तो ईस्ट्रोजन नहीं देंगे। तो जो लैक्टेशन सप्रेशन के लिए देते हैं ना, तो अगर मिल्क स्टार्ट नहीं हुआ है पेशेंट को, क्योंकि अभी डिलीवर हुई है पेशेंट डेड फीटस, तो आप उसमें कैबरगोलिन एक डोज होती है ना, सिविलियन करके आती है कैबरगोलिन, है ना, तो ये 0.5 मिलीग्राम की होती है, तो हम 1 मिलीग्राम स्टेट डोज देते हैं, यानी कि 2 टैबलेट 0.5 मिलीग्राम की 2 टैबलेट देंगे उसको। लेकिन अगर 2 दिन बाद एक्सपायर, सपोज एनआईसीयू में था बच्चा, अब एक्सपायर हो गया, तो लेबर वो तो लैक्टेशन तो स्टार्ट हो गया ना, तो फिर हम इसको डिवाइड डोजेज में दें, 0.25 बीडी 2 डेज के लिए, है ना। ठीक है। अगर नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट है और उसको हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है ना, तो उसमें क्या हो, तो लैक्टेशन ही रहा है ना पेशेंट को बिना प्रेगनेंसी के, है ना, तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, तो उसमें हम कैबरगोलिन देते हैं, लेकिन वो डोज अलग होती है, तो उसमें हम वीकली कितना लेवल है उसके हिसाब से दे सकते हैं। बट अगर लैक्टेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो 1 ग्राम 0.5 की 2 टैबलेट स्टेट पेशेंट को दे देते हैं। ठीक है। अब रिकरेंट आईयूडी हो रहा है, पहले आईयूडी हो गया था उसका, अब वो तो हिस्ट्री दी है, अब या 2 आईयूडी हो गए उसके, उसने दिखाया ही नहीं कहीं पे, तो कोई टेस्ट भी नहीं हुए, है ना, अब आपके पास आई है, तो अब आपको देखना है कि दोबारा आईयूडी ना हो, है ना। पेशेंट चाहेगी ना, भाई मेरे 2 आईयूडी हो गए, तो अब तो आपके पास आई हूँ, तो जो भी कंडीशन है, अब क्या है, पेशेंट को आप, या अगर जैसे डायबिटिक है, कंट्रोल नहीं था, हाइपरटेंशन है, थ्रोम्बोफिलिया, एप्ला सिंड्रोम, क्रोनिक रीनल डिजीज है, थायराइड कंट्रोल नहीं है उसका, 100-150 जा रहा है, ESH, सिफिलिस, तो ये ऐसे कॉजेज हैं जिसमें कि अगर ये कंट्रोल नहीं हुए तो रिकरेंट आईयूडी हो सकता है, क्योंकि ये कॉजेज है ना, उसके रिस्क फैक्टर है, कॉजेज है, अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो दोबारा आईयूडी हो जाएगा। तो पेशेंट आपके पास आया है तो आपके भरोसा करके आया ना कि आप अच्छा बच्चा दोगे उसको, लाइव बेबी, तो आपको ये सब करवाने पड़ेंगे टेस्ट। अगर आरएस नेगेटिव है ना, तो मैंने बताया ना कि आरएच एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल। अब बेबी का आप पता नहीं ले पाओ या नहीं ले पाओ, ब्लड ग्रुप क्या है पहले तो देखा नहीं, अब बेबी डाइड है तो उसमें
अगर आपको उससे टिश्यू से अगर ले तो आपको पता लग सकता है, अदरवाइज फिर आपको पता नहीं ना, तो फिर मदर को आप इम्यूनोग्लोबुलिन लगा देते हो। RS इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो कि अगर मदर में कोई एंटीबॉडी होती है ना, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करता है, जैसे ये आपका सपोज एंटीबॉडी है ना, तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है इसमें एंटीबॉडी और होती है, तो वो क्या करती है, इसको कवर कर लेती है, तो रिएक्शन नहीं होती एंटीजन, तो वो फीटस में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर एक बार अफेक्टेड प्रेगनेंसी होगी ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी यूजुअली, क्योंकि पहले रिएक्शन माइल्ड होती है तो पहला बच्चा यूजुअली नहीं होता, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में जब अगेन रिकरेंस होती है, जो कोई भी जैसे होता है ना, अपन एक वैक्सीन देते, बूस्टर देते हैं ना, बूस्टर से क्या होता है, फ्लेयर हो जाता है, तो इसी तरह से अगर वो सेकंड प्रेगनेंसी में अगर वो अफेक्टेड प्रेगनेंसी है, वो बच्चे में जाके इधर से है ना, तो वो फ्लेयर अप हो जाता है, तो एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है, तो बच्चा अफेक्टेड हो सकता है, तो उसमें आपका एंटीबॉडी, तो अगर डेड फीटस है तो भी हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगा देते हैं पेशेंट को। ये एंटी-डी नाम से भी आता है ना। और अगर बेबी का आप और किसी उससे कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर आप मदर को दोगे। अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है, अब आपके पास आई है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो काउंसलिंग होगी इसकी पेशेंट की। अगर प्रेगनेंसी से पहले आपके पास आई तो आप प्रॉपर काउंसलिंग करोगे कि अगर उसकी डायबिटीज है, उसको थायराइड प्रॉब्लम है, उसको हाइपरटेंशन है या कोई और प्रॉब्लम है मेडिकल, तो आप उसको कंट्रोल करोगे, है ना, कि जब तक आपका ये कंट्रोल नहीं हो जाए जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं करोगे, है ना। तो एक तो ऑप्टिमाइज करते हैं पेशेंट को, है ना, शुगर कंट्रोल हो गई या बीपी कंट्रोल हो गया, हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो प्रीकंसेप्शन, या अगर उसके बार बार उसके कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन आ रहा है तो आप क्रोमोसोमल स्टडी पेरेंट्स की करवा सकते हो, है ना, एप्ला वगैरह है, ये सारे टेस्ट आप कराओगे क्योंकि इसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं, तो आप पहले से टेस्ट कराओगे। फिर अगर पेशेंट आपने ये टेस्ट करा लिए, मान लो, है ना, आपने टेस्ट करा लिए और अगर किसी में कोई आया, सपोज एप्ला पॉजिटिव आता है ना, तो उसमें हम क्या देते हैं, एक तो एस्पिरिन देते हैं और हिपेरिन देते हैं इंजेक्टेबल, अगर पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, है ना, क्योंकि इसमें क्या था, एथेरोसिस और वो वेसल्स ब्लॉक हो जाती है ना, तो उनको ये रखता है, तो ये वाला ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर वो प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। तो अपने पास जब जब पेशेंट आ रही है, अपन ने देख लिया कि एप्ला अगर नेगेटिव है, कुछ नहीं है ना, तो फिर अपन टाइम टू टाइम उसको विजिट कराएंगे। एक होता है 11 to 13 वीक्स पे एंटी स्कैन होता है ना, जिसमें अपन ये बोन देखते हैं, नेजल बोन है, नेजल थिकनेस होती है न्यूकल थिकनेस, तो वो नॉर्मल है या नहीं है। फिर आप कराते हैं 5th मंथ पे एक लेवल 2 एनोमली स्कैन कराते हैं, उसमें भी ठीक है, मैटरनल कंडीशन सब स्टेबलाइज है ना, बीपी सब ठीक है, अपन ने वो करा लिया। बच्चे में कोई मतलब कोई डिफेक्ट नहीं हो रहा। बच्चे में डिफेक्ट देखने के लिए हम दो चीजें देखते हैं, एक तो एंटी स्कैन देखते हैं, है ना, उसमें अगर गड़बड़ लगती है तो फिर हम मार्कर कराते हैं, डबल मार्कर, या फिर अपन को लेवल 2 पे सपोज आपको सोनोग्राफी वाले को दिख रहा है कि इसके बेबी को डिफेक्ट हो सकता है, तो फिर वो क्या करते हैं, या तो एमनियोसेंटेसिस करके फिर बेबी का क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना। तो ये बेबी के लिए देखते हैं, अगर कुछ नहीं है ठीक है, आप मॉनिटर करो टाइम टू टाइम, पेशेंट को ट्रीटमेंट दो, है ना, फ्रीक्वेंट विजिट कराओ उसको। अगर आपको लग रहा है कि इसका जल्दी है ना 8 मंथ पे आईयूडी हो जाता है ना, तो आप 8 मंथ से पहले ही आप उसको एडमिट करके रखोगे, मॉनिटर करोगे, फिटल हार्ट डॉपलर करा सकते हो उसका, भाई बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इस तरह से मॉनिटरिंग करोगे। और पेशेंट को आपको सपोर्ट देना है कि नहीं, पेशेंट को क्योंकि बहुत एंशियस रहती है, जब थर्ड टाइम प्रेगनेंसी 2 आईयूडी हो गए तो पेशेंट, मैडम मेरा बच्चा ठीक तो होगा ना, मैडम मेरा बच्चा ठीक तो नहीं होगा ना, सबसे वो पूछती, क्योंकि पेशेंट बहुत एंशियस होती है, तो आपको वो पार्ट भी देखना होता है ना। पेशेंट को हम कहेंगे नहीं नहीं हम आपका सारा चेक कर रहे हैं, आपको हम अब लाइव बेबी देंगे, तो आप सारे टेस्ट वगैरह सारे कराओगे, उसका मॉनिटरिंग कराओगे, है ना। तो ये वाली चीज। थैंक यू।